پاکستانیوں، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس کے اوپر ذرا میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے مجرم نمبر 1 نواز شریف، جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی، بالی ووڈ کی ایکٹنگ کی، رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا، مرنے والا ہوں، منتیں کر کے باہر چلا گیا۔ میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والوں اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا میں چاہتا ہوں اس بات پہ تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدڑ بھی لیڈر بن سکتا ہے؟ کبھی دنیا میں سنا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود دمدما کے بھاگ جائے اور دوسری دفعہ بھاگا ہے؟ پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آصف زرداری نے تب کہا تھا، آصف زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لیگ کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے ڈبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پوچھتے پوچھتے، وہاں رونا دھو کے وہاں سے بھاگا، جھوٹ بول کے کیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا، پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں 5 سال کا تھا 10 سال کا نہیں، اب پھر باہر چلا گیا ہے۔ اب نون لیگ، میں ذرا اپنی، کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ذرا بچوں کو کہیں ذرا گوگل کریں اپنے موبائل پہ، کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم، اس کے 2 بچے باہر پڑے گئے، اربوں روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں، وہ خود اربوں روپے کے محل میں رہتا ہے، اور جب بچوں سے پوچھتے کہ جی یہ پیسہ کدھر سے آیا، کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم جواب دہ ہی نہیں ہیں۔ یعنی 3 دفعہ ملک کا صدر پرائم منسٹر، اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، پیسہ چوری کر کے باہر، چھٹیاں باہر، عید باہر، گھر باہر، شاپنگ باہر، اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے نمبر 1 جو چاہتا ہے عدم اعتماد کی تحریک ہو، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے سے پاکستان کو پچھلے 30 سال میں لوٹا ہے۔ دوسرا ہے شہباز شریف۔ اب یہ شہباز شریف کون ہے؟ اگر آپ نے شہباز شریف کا پتہ چلوا رہا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئے۔ وہ بیچارہ مقصود چپڑاسی، ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے بینک کے اندر 375 کروڑ روپیہ آ گیا۔ یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر مل میں لندن میں قاضی فیملی بیٹھی تھی آج سے 20-25 سال پہلے، کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے نا، تو ان کو پتا چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے۔ وہ بیچارے حیران کدھر سے آئے ہیں؟ پتا چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمیٹنس دکھا کے پیسہ پاکستان لے آئے۔ تو شہباز شریف، اچھا اب اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں، ان دونوں نے ایک بڑا یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا، تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے۔ وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے، وہ اور اس کی بیٹی، وہ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن شہباز شریف، یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے، یہ وہ جنرل جیلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریا لگاتے لگاتے اب
वजीर आला बना और फिर अरबोपति बन गए, जमाना बदल चुका है। आपको शहबाज शरीफ जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 16 अरब 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया। मैं फिर से नून लिख के पूछता हूं कि आप भी ये पूछे तो सही इससे कि 1600 करोड़ रुपया नौकरों के अकाउंट में किधर से आ गया। अगर हलाल का पैसा था तो अपने अकाउंट में लेते, क्योंकि आपने चोरी का पैसा था तो नौकरों के अकाउंट में। बेटे को भी इसने बाहर भिजवा दिया है, मकसूद चपड़ासी को भी बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को भी बाहर भिजवा दिया है। भाई यहां तो अदालतें आजाद हैं, क्यों बाहर भिजवाया हुआ इनको? तो ये है दूसरा जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है, इसलिए ये भी जल्दी जल्दी अदम एतमाद की तहरीक में। और तीसरा है नई बीमारी जरदारी। जरदारी का कमाल ये है कि जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिनो सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया इनकी चोरी का, बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे, और हुदैबा पेपर मिल का जो करप्शन का केस था वो जरदारी ने उसके ऊपर बनाया नवाज शरीफ पे। 96 की असेंबली में आसिफ जरदारी से पूछा गया कि सारे महल आपका है या नहीं है। एक बड़ा महंगा इसने महल खरीदा बर्तानिया में। इसने असेंबली में कहा ये मेरा नहीं है। वो केस हुआ, केस पाकिस्तान जीत गया, सारे माल को बेचा, पैसा पाकिस्तान आना था। इतने में मुशर्रफ ने इसको NRO दे दिया, पैसा भी हजम कर गया वो। ये फिर $60 मिलियन यानी $6 करोड़ पड़ा था स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान ने केस किया, पाकिस्तान केस जीतने लगा था, मुशर्रफ ने NRO दिया, वो भी हजम कर गया। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। और चौथे नंबर पे फजलू। मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, और ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। मदरसे के बच्चों को ले आया, इस्लामाबाद में धरना दिया। वो मीडिया ने जाके मदरसों के बच्चों से पूछा कि ये क्यों आए हो तुम धरना देने। उन्होंने कहा जी इसलिए कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। उन्होंने कहा कि ये यहूदियों का या साजिश कर रहा है पाकिस्तान में। मौलाना नहीं, डीजल नहीं मैं कह सकता इसको। फजलू, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? पिछले 10 सालों में 4 गुना, 2008 से 18 तक 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है।
4 गुना, 6,000 अरब रुपए से 2008 में 60 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था, इन्होंने 10 सालों में पहुंचा दिया 30,000 अरब। तो मैं इनसे पूछता हूं कि जब आपने मुल्क को मकरूज कर दिया, जो भी हम टैक्स में इकट्ठा करते हैं आधा चला जाता है आपके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे, तो जब आपने मुल्क को मकरूज कर दिया तो यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? आप ही काफी हैं। फजलू मैं आपसे, आपकी और मेरी उम्र एक ही है। हमारी उम्र में हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और आपका तो थोड़ा वजन भी ज्यादा है, इसलिए आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का। यानी आप एक दीन के नाम पे पैसे बनाते हुए आपको कोई खौफ खुदा नहीं है। कुछ तो सोचें कि आप जो मदरसे के बच्चे, और मैं ये समझता हूं कि हमारा बहुत बड़ा एहसास है हमारे मदरसे के बच्चे, लेकिन इनको आप इस्तेमाल करें अपनी सियासत चमकाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। जो मैंने कुरान पढ़ी है और जो मेरा दीन का जितना भी इल्म है, अल्लाह ने आपको माफ नहीं करना। ये 4 लोग मिलके अदम एतमाद कर रहे हैं। और आज मैं अब अपनी आखिर में सारी कौम से पूछना चाहता हूं कि देखें, एक कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका मतलब है, नौजवानों ये सुन लो, कोई भी दुनिया में मुहज्जब माशरा नहीं बन सकता जब तक इस कुरान की आयत पे नहीं चलता। अल्लाह कहता है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो, अच्छाई के लिए जिहाद करो और बुराई के खिलाफ जिहाद करो। इसके ऊपर अच्छे और बुरे की तमीज जब एक माशरा रखता है, उसकी अखलाकियात ऊपर चली जाती है, वो माशरे ऊपर जाते हैं। और जिन माशरों के अंदर कानून की बालादस्ती होती है, कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी का मतलब कि कमजोर और ताकतवर का एक ही कानून, जिसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर चोर को सजा नहीं देते थे और बेचारे कमजोर चोर को जेल में डाल देते। कौम तबाह हो गई है तुम्हारे से पहले कई। अब ये जो चोरों का टोला है, ये सारे जो आपकी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, 35 साल से ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं 1990 की बात करता हूं। मैं जब क्रिकेट खेलता था हिंदुस्तान से, जब मैं पाकिस्तान आता था तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से एक अमीर तरीन मुल्क में पहुंच गया हूं। हम उनसे आगे थे, हम सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब ये चोरों का टोला इस मुल्क के ऊपर मसल्लत हुआ, हम सबसे पीछे रह गए। ये अमीर तरीन हो गए हैं, कौम मकरूज और गरीब हो गई है। ये समझ जाए मेरे मेलसी के नौजवानों, ये आप समझ जाए, जब तक एक कौम अच्छे बुरे की तमीज नहीं करती, कौम ऊपर नहीं जा सकती। मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाकियात के ऊपर अपनी रियासत